भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 14। सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादं वैयासखी स भगवान् अथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुम् आरभत भागवत प्रधानः। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। Sut Goswami said, O son of Bhrigu, after Sukdev Goswami, the most respectable devotee, the son of Vyasdev, heard the pious questions of Maharaj Parikshit, he thanked the king with great respect, and then he began to discourse on the topics concerning Krishna, which are the remedy for all sufferings in this age of Kali. Tatparya. In this verse, the words Krishna Charitam Kali Kalmashagnam indicate that the activities of Lord Krishna are certainly the greatest panacea for all miseries, especially in this age of Kali. It is said that in Kali Yuga people have only short lives and they have no culture of spiritual consciousness. If anyone is at all interested in spiritual culture, he is misled by many bogus swamis and yogis who do not refer to Krishna Katha. Therefore, most people are unfortunate and disturbed by many calamities. Srila Vyasdev prepared Srimad Bhagavatam at the request of Narad Muni in order to give relief to the sufferings of people of this age. Kali Kalmashagnam. The Krishna consciousness movement is seriously engaged in enlightening people through the pleasing topics of Srimad Bhagavatam. All over the world, the message of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita is being accepted in all spheres of life, especially in advanced educated circles. Srila Sukdev Goswami is described in this verse as Bhagavat Pradhana, whereas Maharaj Parikshit is described as Vishnu Ratam. Both words bear the same meaning, that is, Maharaj Parikshit was a great devotee of Krishna and Sukdev Goswami was also a great saintly person and a great devotee of Krishna. Combined together to present Krishna Katha, they give great relief to the suffering humanity. Anartho pasumam sakshat bhakti yogam madhokshaje lokasya janato vidvams chakre satvata samhitam. The material miseries of the living entity, which are superfluous to him, can be directly mitigated by the linking process of devotional service. But the mass of people do not know this, and therefore the learned Vyasdev compiled this Vedic literature, Srimad Bhagavatam, which is in relation to the supreme truth. People in general are unaware that the message of Srimad Bhagavatam can give all human society relief from pangs of Kali Yuga, Kali Kalmashagnam. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Utapadakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan
सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादं वैयासिकी स भगवान् अथ विष्णुरातं प्रत्यार्च कृष्ण चरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुम आभृत भागवत प्रधान। तो यहाँ सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं। भृगुनंदन यहाँ पर सौनक ऋषि को कहा गया है। तो यहाँ सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य में उपस्थित जो ऋषिगण हैं उनको बता रहे हैं, जिनको लीड कर रहे हैं श्री शौनक ऋषि। तो उनको बता रहे हैं कि जब महाराज परीक्षित ने इस प्रकार का प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से किया, जिससे कि यहाँ कहा गया है भागवत प्रधान, तो भागवत प्रधान यहाँ सुखदेव गोस्वामी को कहा गया है और परीक्षित महाराज को कहा गया है विष्णुरात। तो इस प्रकार सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जब इस प्रकार महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी को, तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के इन प्रश्नों को उन्होंने धन्यवाद किया, साधुवाद। ऐसा कहा कि जो प्रश्न है अति उत्तम है। जैसे जो भी प्रश्न जो है जो कृष्ण के विषय में होता है, वह प्रश्न जो है यहाँ पर बताया गया है कि कलि कल्मषघ्नम, वह जो कृष्ण कथा है, जो कृष्ण के विषय में बोलना, कृष्ण के विषय में कहना, जो कृष्ण कथा है यह कलि कल्मषघ्नम है। यह कलयुग के समस्त पापों को, समस्त कलयुग के जितने भी मिसगिविंग्स हैं उसके प्रभाव को यह नष्ट करता है। इसलिए इसे कलि कल्मषघ्नम कहा गया है। तो इस संसार में जो जीव हैं वो कलयुग के दोषों से यहाँ पर पीड़ित हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में कलयुग के दोषों से पीड़ित है। जैसे हम कलयुग में कहा गया है कि प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंदा मतियो मंद भाग्या ही उपद्रुता। तो कलयुग में लोगों की आयु कम होती है। प्रायेण अल्प आयुष सभ्यो कलो अस्मिन् युगे जना, और यहाँ पर जो है कलह होता रहता है। मंद सुमंद मतियो, और जो बुद्धि होती है, मति होती है, बहुत मंद होती है। और जो भाग्य है जीवों का, यहाँ कलयुग में भौतिक संसार में कोई भाग्य नहीं होता है, परंतु दुर्भाग्य होता है। मंद भाग्य ही उपद्रुता है। और जो कलयुग में जो जीव हैं वो हमेशा नाना प्रकार से चिंता से, नाना प्रकार के दुखों से ग्रसित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। तो इस प्रकार यह जो कलयुग के दोष हैं, जो भी व्यक्ति कलयुग में इस संसार में रह रहा है, अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो उन दोषों से युक्त है। और इस प्रकार कलयुग के प्रभाव से सभी जीवों का जो जीवन है वो कष्टमय है, सभी जीवों का जो जीवन है वो दुखमय है। तो यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलि कल्मषघ्नम, जो भगवान का चरित्र है, कृष्ण चरितम, जो कृष्ण के विषय में यहाँ सुखदेव गोस्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यह कृष्ण का जो चरित्र है, कृष्ण कथा है, वो कलि कल्मषघ्नम है। वह कलयुग के समस्त दोषों से जीव को मुक्ति दिलाने वाला है। कलयुग के प्रभाव से, कलयुग के कष्टों से जीवों को मुक्ति दिलाने वाला है। तो वस्तुतः जो कृष्ण कथा है वह
उसी से जीव जो है इस संसार के कष्टों से अपने आप को मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध में जब जो नैमिषारण्य में ऋषिगण हैं, सौनकादि ऋषिगण, जब सूक्त गोस्वामी से प्रश्न पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मुनिः साधो पृष्ठो हम भवतभिर लोक मंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति। तो सूत गोस्वामी ने सनक आदि ऋषियों को उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि आपके प्रश्नों का जो संबंध है वो कृष्ण से है, और चूंकि यह प्रश्न का संबंध कृष्ण से है और यह प्रश्न जो इस प्रकार का प्रश्न और इस प्रकार का उत्तर जो कृष्ण कथा है, भवद्भिर लोक मंगलम, यह संसार के जीवों का मंगलकारी करने वाला है, संसार के समस्त जीवों के जीवन में मंगलकारी मंगलता प्रदान करने वाला है। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसीदति, और जो व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण कथा को अपने जीवन में स्वीकार करता है, कृष्ण कथा का श्रवण और कीर्तन नित्य करता है, वह येन आत्मा सुप्रसीदति, वह व्यक्ति जो है वह संसार में संतुष्टि को, शांति को प्राप्त करता है। तो यहां भी महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। ये इन प्रश्नों को हमने देखा कि किन किन प्रश्नों को किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण किस प्रकार से प्रकट हुए, कृष्ण के संबंधियों के विषय में महाराज परीक्षित ने पूछा, और किस प्रकार से भगवान जो है कृष्ण उनको वसुदेव जी लेकर वहाँ मथुरा से वो गोकुल गए, कितने वर्ष तक वहाँ लीला किया, भगवान ने कितने रानियों से विवाह किया, और इस प्रकार नाना प्रकार के प्रश्नों को पूछा। और ये भी कहा कि जो प्रश्न मैंने पूछा है उसे आप बताइए, जो प्रश्न मैंने नहीं पूछा है कृष्ण के विषय में आप कृपया करके उसे भी बताइए। और महाराज परीक्षित यहाँ कह रहे हैं कि आप ये इस बात को आप कंसिडर नहीं कीजिए कि मैं जो है इतने दिनों से खाया नहीं हूँ, पिया नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपके श्रीमुख से कृष्ण कथा का निरंतर अमृत पान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे दुख, थकान और जो है क्षुधा, प्यास, ये सब से मैं मुक्त हो गया हूँ। इसलिए आप कृष्ण कथा को आगे अपने जो कृष्ण कथा का जो प्रवाह है, जो अमृत की गंगा है, उसको आप आगे बढ़ाते जाइए, उसको आप मुझे सुनाइए। मैं सुनने के लिए बहुत आतुर हूँ, बहुत ही इच्छुक हूँ, बहुत लालायित हूँ। तो यहाँ सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि इस प्रकार से जब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के इन प्रश्नों को सुना तो बहुत प्रसन्न हुए और उनको साधुवाद दिया और कहा एवं प्रसन्न एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासखी भगवान अथ विष्णुरातम। तो वैयासखी जो हैं वो सुखदेव गोस्वामी है, जो व्यासदेव के पुत्र हैं, और विष्णुरात जो है वो महाराज परीक्षित हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित को भगवान ने रक्षा की थी। जो विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा होती है, जो सदैव विष्णु के द्वारा रक्षित है, वह उसे विष्णुरात कहते हैं। तो यहाँ दो महान भक्तों के बीच में कृष्ण कथा की चर्चा हो रही है। एक महान भक्त जो हैं वो भागवत प्रधान है, जो इन्हें सुखदेव गोस्वामी है, उन्हें इस श्लोक में भागवत प्रधान कहकर सूत गोस्वामी ने उनको उनकी व्यक्ति की है, उनका परिचय भागवत प्रधान के रूप में दिया है, और कह रहे हैं कि भागवत प्रधान, एक जो भागवत प्रधान है, भागवत प्रधान का अर्थ जो भगवान के भक्तों में प्रधान है। भागवत जो है दो प्रकार का होता है, एक पुस्तक भागवत, एक व्यक्ति भागवत। तो पुस्तक भागवत की चर्चा यहाँ पर व्यक्ति भागवत के द्वारा किया जा रहा है। व्यक्ति भागवत जो है सुखदेव गोस्वामी है, और वो किस प्रकार के भागवत हैं? भागवत प्रधान है, और भक्तों में भी अग्रज हैं, भक्तों में भी श्रेष्ठ हैं, प्रधान भक्त हैं। तो एक प्रधान भागवत प्रधान जो है वो विष्णुरात को बता रहे हैं, विष्णुरात उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दोनों का एक ही अर्थ है। विष्णुरात वो है, वो भक्त जो सदैव विष्णु के द्वारा रक्षित रहता है, जिसकी रक्षा विष्णु के द्वारा की जाती है, और भागवत प्रधान का अर्थ है जो भक्तों में श्रेष्ठ है। तो यहाँ दो महान भक्तों के बीच में कृष्ण के विषय में चर्चा हो रही है। कितना मधुर चर्चा है, कितना अमृतमय चर्चा है। तो भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं कि मच्चिदा मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो कहते हैं कि मच्चिता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम,
जब मेरे भक्त एकत्रित होते हैं, जब मेरे भक्त इकट्ठा होते हैं, तो उनको एक ही बात की कामना होती है, एक ही बात की अभिलाषा होती है, एक ही बात की इच्छा होती है। क्या? वो कृष्ण के विषय में वो चर्चा करना चाहते हैं। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। वो परस्पर एक प्रश्न पूछते हैं, दूसरा उत्तर देते हैं। जैसे भक्तगण जब एकत्रित होते हैं तो क्या है, श्रीमद् भागवतम क्लास में क्या करते हैं, वो एक भक्त जो है वो श्लोक गाते हैं, दूसरे उसको पढ़ते हैं। एक भक्त जो है कृष्ण कथा बोलते हैं, दूसरे भक्त उसको श्रवण करते हैं। कीर्तन में एक भक्त जो है लीड करते हैं, दूसरे भक्त उसको फॉलो करते हैं। तो सभी कृष्ण कथा है। भगवान के नाम रूप गुण लीला का जो वर्णन है, चर्चा है, भगवान का कीर्तन संकीर्तन, ये सभी कृष्ण कथा है, सभी संकीर्तन है। तो जो भक्तगण एकत्रित होते हैं तो उनको एक ही मात्र अभिलाषा होती है, कृष्ण के महिमा का गुणगान करना, क्योंकि यह जीवों के लिए कल्याणकारी मार्ग है, यह भक्ति का मार्ग है। और यहाँ श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वस्तुतः इन्हीं कार्य को करते हैं कि वो एकत्रित होते हैं तो कृष्ण के विषय में वो चर्चा करते हैं। और इस प्रकार से कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उन्हें जो है तुष्यन्ति च रमन्ति च, उन्हें बहुत तुष्टि मिलती है और उसमें उनको रस मिलता है। रमन्ते, उसमें रमन्ते योगिनो अंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। तो भगवान के इस दिव्य लीला का वर्णन करके उसमें वो रमते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। जिस प्रकार की एक मधुमक्खी होती है, वह पुष्प में रमता है, उसमें से मधु एकत्रित करता है। उसी प्रकार से जो भक्त हैं, भगवान के चरण कमल, भगवान का जो नाम रूप गुण लीला है, वह अमृत का सागर है और भक्त जो हैं उसमें से अमृत को पान करते हैं। इस प्रकार से वो अत्यंत संतुष्टि का अनुभव करते हैं। तो जब भी वस्तुतः जो भक्त हैं उनके बीच में जो वार्तालाप होती है वह कृष्ण कथा है। वो सभी जो वार्तालाप है वस्तुतः वो कृष्ण कथा है, क्योंकि वो दो भक्तों के बीच में हो रहा है। और दुर्भाग्यवश जो तथाकथित भागवत सहता करने वाले जो अप्रामाणिक लोग हैं, वो जब भागवत का चर्चा करते हैं तो वह कृष्ण कथा का चर्चा नहीं करते, कृष्ण भक्ति का चर्चा नहीं करते हैं। और इस प्रकार से वो चूंकि कृष्ण भक्ति का चर्चा नहीं करते, इसलिए उनका जो कथा है वो एक प्रकार का इंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन होता है। उसमें वाचक भी अपना मनोरंजन करता है और जो सुनने वाले हैं वो भी अपना मनोरंजन करते हैं। एक प्रकार का सत्व गुण में वो मनोरंजन है, लेकिन उससे जो वास्तविक लाभ जिसके लिए भागवत का प्राकट्य हुआ है वो लाभ उन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें जो वक्ता हैं उसे इस विषय के ऊपर निष्ठा नहीं है कि कृष्ण कथा ही जीवन के समस्त कल्मशों को मिटाने वाला है। जो भागवत बोलने वाले हैं उनको कुछ धन की इच्छा होती है, धन की कामना होती है, और धन की कामना से प्रेरित होकर वो भागवत का सहारा लेकर श्रीमद् भागवतम को वो बोलते हैं। और जो लोग हैं उनमें भी भक्ति की अभिलाषा नहीं है, परंतु थोड़ा सत्व गुण में मनोरंजन करने की आवश्यकता उनकी इच्छा है, इसलिए वो क्या करते हैं, उस प्रकार के भागवत सप्ताह को सुनते हैं। परंतु वस्तुतः इस प्रकार का जो भागवत सप्ताह है, इससे ना ही श्रोता को लाभ होता है, ना श्रोता को लाभ होता है, ना ही वक्ता को लाभ होता है। क्योंकि भागवत जो है वह भक्तों के बीच में होना चाहिए, और भागवत जो है उसमें कृष्ण कथा का चर्चा होना चाहिए। जब हम कृष्ण कथा का चर्चा करते हैं तो कलि कल्मषघ्नम, जितने कलयुग के दोष हैं उससे जीव मुक्त हो जाता है, कलयुग के समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। कलयुग जो है वह दोषों का सागर है। कलेर दोषा निधि राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनाद इव कृष्ण से मुक्त संग परम रचेत। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कलेर दोषा निधि राजन, कलयुग जो है वह दोषों का निधि है, सागर है। अस्ति ही एको महान गुण है, और इसमें एक महान गुण है, एक बेनेडिक्शन है। वो क्या है कि कीर्तनाद इव कृष्ण से, एकमात्र कृष्ण का नाम का कीर्तन करने से, कृष्ण कथा करने से जीव जो है वह इस संसार के कलयुग के सभी कल्मशों से वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम में बताया जा रहा है कि
जो जीव है संसार में, और वो इस संसार में जो कष्ट भोग रहे हैं, वस्तुतः जो कष्ट है वह जीव जो है उसकी स्थिति वह कष्टों से परे है। जीव की वास्तविक स्थिति वो कष्टों से परे है, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो सच्चिदानंद है। भगवान स्वयं सच्चिदानंद है और जीव भी सच्चिदानंद है। तो जीव की स्थिति, वास्तविक स्थिति कष्टों से परे है, परंतु इस संसार में बंध जाने के कारण, इस संसार में बद्ध अवस्था के कारण जीव जो है वह नाना प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है और नाना प्रकार के कष्टों से अपने आप को, कष्टों में अपने जीवन को व्यतीत करता है। वो कष्टों से विमुक्त नहीं हो सकता है। वो कोई भी कार्य करे, किसी भी प्रकार का कार्य हो, तो वह कार्य जो है वह उसके कष्टों से उसे मुक्ति नहीं दिला सकता है। जैसे इस संसार में जो लोग हैं वो कष्टों से निवारण के लिए नाना प्रकार के कार्य करते हैं। लोग इस संसार में सुख को पाने की इच्छा से, उससे प्रेरित होकर बहुत मेहनत करते हैं। सुबह उठते हैं और ट्रैवल करते हैं, वर्क प्लेस पर जाते हैं, वहाँ पर मेहनत करते हैं और उसके बाद उनको उस मेहनत से कुछ पैसा मिलता है। और हम देखेंगे लोग जो हैं कभी कभी इतना मेहनत करते हैं कि वो सोते भी कम है, सोने का, खाने का उनको होश नहीं होता है। इस प्रकार से वो मेहनत करते हैं और उनका मेहनत करने का जो अभिप्राय क्या है, हेतु क्या है, तो वो सोचते हैं जब मुझे पैसा आएगा मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा, मुझे ज़्यादा पैसा आएगा और जब पैसा आएगा तो मैं इससे अपने कष्टों से अपने आप को मुक्त कर लूंगा। परंतु जीव की वास्तविक स्थिति जो है वो कष्टों से परे है। जीव जो है वो सच्चिदानंद है और उसका जो सच्चिदानंद स्वरूप है वह जब प्रकट होता है तब जीव की कष्टों से मुक्ति होती है। जो भौतिक प्रयास है, भौतिक प्रयास जीवों को उसके कष्टमय जीवन, संकटमय जीवन से उसे मुक्ति नहीं दिला सकता है, क्योंकि जीव की अवस्था बद्ध है। वो बद्ध अवस्था में वो कोई भी कार्य करे उसे वो जो भौतिक अवस्था, जो बद्ध अवस्था है, उससे वो मुक्त नहीं हो सकता है। तो उसे यह समझना होगा कि उसकी वास्तविक स्थिति जो है वह आत्मा की स्थिति है और ये जो कष्ट, जो ऐसा जो कष्ट भोग रहा है, वो कष्ट प्रतीत हो रहे हैं, वो कष्ट को स्वीकार करता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आत्मा को वो कष्ट प्रभावित कर रहे हैं, परंतु आत्मा जो है वो उन कष्टों से परे है। आत्मा आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक होने के कारण वो उसकी स्थिति कष्टों से परे है। परंतु जब आत्मा बद्ध स्थिति में होती है तो वो अपने आप को शरीर मानती है और मिथ्या अहंकार वश होकर अपने शरीर, मन और इंद्रियों को तुष्ट करके उस स्वयं को तुष्ट करने का चेष्टा करता है। और इस प्रकार का चेष्टा कभी भी जीव को उसके कष्टों से मुक्ति दिलाने में, कष्टों से निराकरण करने में वह संभव सक्षम नहीं है। कोई भी, किसी भी प्रकार का भौतिक चेष्टा जीव को उसके कष्टों से मुक्ति नहीं दिला सकता, उसके कष्टों का निवारण नहीं कर सकता है। तो जीव को जो कष्टों का निवारण कर सकता है वह है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा एकमात्र विषय वस्तु है, क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय वस्तु है, यह दिव्य विषय वस्तु है, इसलिए यह जीव के वास्तविक स्थिति को वो प्रकट करता है। जब हम कृष्ण कथा करते हैं तो यह कृष्ण कथा जो है वो हमारे हृदय में, हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विघ्नोति सुहृत्सताम, तो हमारे हृदय में जो कलमश हैं उनको नष्ट करता है। और ये जो कलमश है, ये कलमश क्या है? तो यह कलमश जो है काम, क्रोध, लोह, मोह, मद, मत्सर, और काम, क्रोध, लोह, मोह, मद, मत्सर से जीव प्रेरित होकर वह अपने इंद्रियों से के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से वह काम, क्रोध, लोह, मोह, मद, मत्सर को तुष्ट करने का चेष्टा करता है। परंतु ये दोष है और हम दोषों को बढ़ाकर, दोषों को तुष्ट करके कैसे यह संभव है कि जीव स्वयं को तुष्ट कर सके? तो जीव जो है स्वयं की तुष्टि के लिए यह कार्य कर रहा है, परंतु यह कार्य जो है, भौतिक कार्य जो है, उसको कभी भी संतुष्टि नहीं दिलाते हैं, क्योंकि जीव जो है वह वस्तुतः आत्मा है और आत्मा जो है इस संसार के बंधन से, संसार के कष्टों से मुक्त है। तो यह मुक्ति जो है यह कृष्ण कथा हमें दिलाती है।
इस कष्टों से जो मुक्ति है वो हमें कृष्ण कथा दिलाती है। जैसे ही जीव को इच्छा होती है, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधनोति सुहितसताम। जैसे जब जीव को इच्छा होती है, उसको उसके मन में जिज्ञासा होती है कृष्ण के विषय में जानने की, और कृष्ण के भक्तों का संग करने की जब इच्छा होती है, उसके जीवन में इस प्रकार की श्रद्धा जागती है, तो उसका जीवन वास्तव से कष्टों के से मुक्ति के मार्ग में बढ़ना, प्रस्थान करना वह आरंभ करता है। उसका जीवन इस प्रकार से कष्ट से मुक्ति के मार्ग में उसका जीवन चलने लगता है। तो इस प्रकार से भक्ति जो है आरंभ होती है। जैसे कि आद्यो श्रद्धा, वो कोमल श्रद्धा से भक्ति आरंभ होती है। जीव को जिज्ञासा होती है कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, और कृष्ण से मेरा क्या संबंध है, भौतिक संसार कहाँ से प्रकट हुआ है। इन सभी के विषय में जब जानने की इस प्रकार इच्छा होती है, तो वह क्या करता है, आद्यो श्रद्धा तथा साधु संग, वह प्रामाणिक भक्तों के संग में आता है, और प्रामाणिक भक्तों के संग में आकर ये जो जिज्ञासा है उसे वो पूरा करने लगता है। उसको जिज्ञासा जो है, उसके हृदय में जिज्ञासा जागती है, और वो प्रामाणिक भक्तों से इस प्रकार वो श्रवण करता है। और यहाँ दो प्रामाणिक भक्त हैं, महाभागवत भक्त हैं, एक सुखदेव गोस्वामी और एक महाराज परीक्षित। तो दो महाभागवत भक्तों के बीच में यह कृष्ण कथा का, विशुद्ध कृष्ण कथा का, दिव्य कृष्ण कथा का चर्चा हो रहा है। तो इसे जब एक बद्ध जीव श्रवण करता है, तो उसके हृदय में कृष्ण के प्रति निष्ठा जागती है। तो आद्यो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा निष्ठा। तो इस प्रकार निष्ठा जागती है, फिर रुचि, भाव, प्रेम, ये जो है धीरे धीरे हृदय में जागता है। तो कलयुग में जो लोग पीड़ित हैं इस कलयुग के दोषों से, कलयुग के कष्टों से, और इन कष्टों से जो निराकरण करने वाला जो विषय वस्तु है, जो दिव्य विषय वस्तु है, वह कृष्ण कथा है। इसलिए यहाँ सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषि को कह रहे हैं कि कली कल्मशग्नम, यह कथा जो है, जिस प्रश्नों को महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से किया, और सुखदेव गोस्वामी उन प्रश्नों को परीक्षित महाराज से श्रवण करके और सुनकर बहुत उनको साधुवाद करते हैं, देते हैं कि कितना सुंदर प्रश्न आप कर रहे हैं। और महाराज परीक्षित यह भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आप कृष्ण कथा को कहिए, आपके मुख से जो कृष्ण कथा आ रही है उससे मैं पोषित हो रहा हूँ, मेरी आत्मा जो है उसका पोषण हो रहा है, और इस प्रकार मैं भूख प्यास इससे विमुक्त हो गया हूँ, इसका मुझे कोई चिंता नहीं है। एक बार जब मैं प्यासा था, तो मैं ऋषि के गले में, समीक ऋषि के गले में मैंने उनके कंधे पर एक मरा हुआ सर्प डाल दिया था। परंतु वास्तव में यह भगवान की योजना थी, क्योंकि भगवान का भक्त जो है वह भगवान के दिव्य नाम कीर्तन में, जो उनके भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन करने में वह दिव्य आनंद का अनुभूति करता है। इसलिए वो इस प्रकार के कार्य को नहीं करता है। भगवान का जो भक्त होता है वह निर्मत्सरा नाम सताम होता है, वह किसी से द्वेष नहीं करता है। परंतु यह भगवान की योजना थी, तो भगवान श्रीमद् भागवतम को प्रकट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि परीक्षित महाराज को श्रवण करें, और सुखदेव गोस्वामी जो है उनके श्रीमुख से यह भागवत का जो ज्ञान है यह वापस प्रकट हो। तो इसके लिए भगवान ने इस स्टेज को तैयार किया। और क्योंकि यहाँ हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित जो है वह 7 दिन तक लगातार दिन रात वो सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे हैं, उस दिव्य अमृत का रसपान कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं भूख प्यास थकान इससे विमुक्त हूँ। तो जो भक्त भूख और प्यास से विमुक्त है कृष्ण कथा का श्रवण करके, वह भला कैसे इस कार्य को कर सकता थी, भगवान की योजना थी। तो वास्तव में जो एक बद्ध जीव के जीवन में जो कष्टों से जो छुटकारा दिलाने वाला है, कष्टों के बंधन से, बद्ध अवस्था से जो मुक्त कराने वाला है, वह कृष्ण कथा है। इसलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषि को कह रहे हैं कलु कल्म शग्नम, यह जो कृष्ण कथा है यह कली कल्म शग्नम है। इसलिए एक बद्ध जीव को चाहिए कि वह कृष्ण कथा का श्रवण करे। कृष्ण कथा उसके जीवन में वास्तव में मंगलकारी विषय वस्तु है।
कृष्ण कथा के अलावा कोई भी भौतिक कार्य जो है वह मंगलकारी विषय वस्तु एक बद्ध जीव के जीवन में नहीं है, क्योंकि वो कितना भी पुण्य करता है, कितना भी पाप करता है, कितना भी धर्म करता है, वो सभी जो कार्य हैं वह जीव को इस संसार में बांधने वाले हैं। यदि वो पाप करता है, पाप वृत्ति से वह प्रेरित होकर वह अपने इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करता है, तो वह पाप वृत्ति जो है वह उसे अधोगति को प्राप्त कराएगी। और कोई व्यक्ति पुण्य वृत्ति से सोचकर वो धर्म का कार्य करता है कि मैं जाकर स्वर्ग में जाऊंगा और वहां पर स्वर्ग के सुख का भोग करूंगा, और इस प्रकार से जो है इस प्रकार का जो वह पुण्य से प्रेरित होकर इस प्रकार के धर्म के कार्यों को करता है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, और तेतुम भक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो वह जो व्यक्ति है वह उसके जब पुण्य छीन हो जाते हैं तो वापस वो मृत्यु लोक में आ जाता है। तो कोई व्यक्ति अपने प्रयास से या पाप वृत्ति से कार्य करे या पुण्य वृत्ति से जो है कार्य करे, दोनों कार्य जो है भौतिक है, और ये भौतिक कार्य जो है वह जीव को इस संसार में बांधते हैं। कोई अच्छे कर्म से बांधता है और कोई बुरे कर्म से बांधता है, परंतु दोनों बांधता है। परंतु ये जो कृष्ण कथा है वह जीव को इन बंधनों से मुक्त करता है। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं जब कृष्ण कथा करते हैं तो ऐसा नहीं कि उनके जीवन में जो है किसी प्रकार का ह्रास होता है या किसी प्रकार की कमी होती है। भगवत गीता में कहा गया है कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव ज्ञानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। तो जो सिद्धि या जो फल वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, जो जीव को वेदों को पठन पाठन करने से, वेदेषु यज्ञेषु यज्ञ करने से, तपस्सु चैव तपस्या करने से, दान करने से इत्यादि जो है जो फल प्राप्त होता है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो पुण्य प्राप्त होता है, अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। तो जो भगवान का भक्त होता है, यहाँ पर भक्त को योगी कहा गया, भगवान कह रहे हैं, तो वह जो है योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, वह जो है इन सभी पुण्यों से श्रेयस्कर, इनसे परे वह स्थान को प्राप्त करता है। इसलिए जो व्यक्ति पुण्य से प्रेरित होकर यज्ञ दान तप क्रिया को करता है, तो जो भगवान का भक्त है एकमात्र कृष्ण कथा का श्रवण और कीर्तन करके उसे इन सभी फल प्राप्त होते हैं और इनसे श्रेयस्कर फल को भी वो प्राप्त करता है। वह क्या है? तो वह अपने बद्ध अवस्था से वो विमुक्त होता है और भगवान के धाम को वो प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम तजन तंते कलेवरम तम तम निवेदित कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। तो जो जिस प्रकार का दशा में अपने देह को त्याग करता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो जो भगवान का भक्त है वह कृष्ण भावना में होता है। उसका पूरा जीवन कृष्ण कथा को श्रवण कीर्तन करने में, कृष्ण का भजन करने में, कृष्ण की भक्ति करने में व्यतीत होता है। और इस प्रकार वह कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार करके, कृष्ण भावनामृत को विकसित करके वह भगवान के धाम को वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो संसार के जो लोग हैं, जो वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, इस प्रकार के भौतिक कार्यों को कर रहे हैं इस कामना से कि ये चीजें हमें संतुष्ट करेगी। एक भक्त जो है इन सभी फल से वो भी विहीन नहीं होता है, परंतु इससे और ऊंचे फल को भी वो प्राप्त करता है, जो कि भगवान का परम धाम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि तुम समस्त धर्मों का परित्याग कर दो और जितने भी मनोधर्म हैं सभी को त्याग करके आप मेरे शरण को ग्रहण करो। तो भगवान के शरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने का अर्थ है भगवान की कथा का श्रवण करना। क्योंकि जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, जब हम भगवान के महान भक्तों की कथा का श्रवण करते हैं, तो हम देखते हैं किस प्रकार उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया। और
जब उनके प्रश्न और उत्तर को जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति और जानने की जिज्ञासा जो है, अभिलाषा जो है वो उत्पन्न होती है। और यह अभिलाषा, कृष्ण के विषय में जानने की अभिलाषा, यह जो है यह मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा वरदान है। यह सबसे बड़ी सिद्धि है, क्योंकि यह वरदान, यह सिद्धि जो है वह जीव को उसके समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाती है। कलु कष्ट कलम शक्नम यहाँ कहा गया है। तो इस प्रकार जो कृष्ण कथा है, पुण्य श्रवण कीर्तन, यह जो है पुण्य श्रवण कीर्तन है, और यह हृदय से हमारे कल्मशों को मिटाने वाला है, और जीव को जीवन में कृष्ण कथा जो है वह सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए एक साधक भक्त को चाहिए कि वह नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण और कीर्तन करे। श्रीमद् भागवतम का श्रवण नियमित रूप से करे। जब हम नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का कथा का श्रवण करते हैं तो यह कली कल्मशग्नम, यह जो है हमारे हृदय के जो विकार हैं, जो हमारे हृदय में जो बैठे हुए शत्रु हैं, उससे हमारी रक्षा करता है, उससे हमें निराकरण करता है। वो उन शत्रुओं को, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य को, कलयुग के प्रभाव से हमें छुटकारा दिलाता है। और यह मंगलकारी विषय है जिससे कि बद्ध जीव इस संसार के बद्ध अवस्था से विमुक्त हो पाता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त कर पाता है। तो यहाँ हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।